Namaskar. So, how are you doing, dear learners? Hope you are well and saving yourself from the scorching sunlight. Yes, there is a lot of heat wave going on outside. Stay at home, study hard, and stay hydrated. So, we all know our exam is coming on 18th June and the preparation is going on quite well. Videos are uploading regularly, and yet there is something missing. And you know what? It is the revision part. Hope you are doing proper revision, and if not, do it, because you all know questions are repeating. You have seen by yourself that the questions do repeat every time. Not the question, then the concept behind it. So why to waste your marks by just not revising it properly? And if you are reading any book, stick to that book only. Don't go for any new book now. Just complete the book and revise it twice, at least twice minimum, because रिविजन इज मस्ट. कितने भी बुक्स पढ़ लो, अगर रिविजन नहीं कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली नॉट स्कोर अ गुड मार्क. एंड एटलीस्ट टारगेट 210 मार्क्स इफ यू वांट JRF. एंड इफ यू ओनली वांट टू सिक्योर नेट, only want to secure the assistant professorship, then 200. Okay, and I am speaking with the perspective of a general category student, so taking them in consideration, 200 for the assistant professorship and JRF, you have to score more than 210. Chaliye. So without wasting much of your time, let's get started now. Our today's video is UGC NET 2020 paper 1, general aptitude, and the shift 1, the very first paper of 24th September 2020, and our shift is shift 1. Okay, so here we are not going to go through every shift, but the first shifts of all the exams till 2022. In 2023 we are going to solve shifts and papers of more than 1 or 2 shifts, because that is the most nearest and questions might repeat. So question number 1, in which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts. So कहाँ पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? इट इज़ ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल. ओके, मेमोरी लेवल इज द मोस्ट बेसिक, वेयर student recall the facts and information, but in understanding the student can discriminate between the positive and negative, and in this seeing of relationship among facts and their examples is the main focus. Then comes our reflective level. In reflective level, it is the most advanced, and there is problem solving and problem raising, the main focus of concern. इंट्रोस्पेक्टिव लेवल किसे बोला जाता है? रिफ्लेक्टिव लेवल को. एंड देन ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, इट हैज़ कंसर्न विद इफेक्ट्स एंड फीलिंग्स. ओके, लर्नर विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, खुद से ही पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. दिस 3 आर, फर्स्ट वन इज कम्प्लीटली टीचर मोटिवेटेड, बट द BCD आर लर्नर मोटिवेटेड. Question number 2, during teaching, a teacher statement that encourages student to elaborate on an answer, either their own or that of others, will be called option D, probing. It is called probing. So basically probing क्या होता है? It is a teaching skill where teacher pretend to ask question to the question in response to the answer. Like if I am asking a question, if you are asking me a question and in repeat I ask you the question and expect you to give me the answer related to that, so that you can do the brainstorming and make your mind think the correct answer yourself. खुद से आंसर सोचकर मुझे सही आंसर बताना is what probing. Supporting, teacher is supporting you to think yourself. Okay, it is a tool one can use to invite participants to add rich details to their descriptions and explanations. Okay, it focuses more on students' response. Question number 3, which of the following will be called behavioral rather than attitude and beliefs related competency for becoming an effective teacher? यहाँ क्या पूछा है? Behavioral competencies, locus of control, communicating, managing and monitoring, teachers' enthusiasm, evaluating and providing feedback. So what will be the answer? It is option C, BCE. Communicating, managing and monitoring, and then comes evaluating and providing feedback. Okay, so communication, it is the most basic need of teaching learning process. And when it comes to effective, then the first and the most foremost quality of a teacher should be, she should be good at communication. Basically there are few qualities of a good teacher to become an effective teacher: motivate students in learning, then have strong communication skill, tries to facilitate learning from every aspect, consider individual differences in class, have patience, value real world learning, evaluate and provide feedback, can able to monitor the class and manage the class, have good management skills. Okay, focus on collaboration of teacher and student,
दिस आर द फ्यू थिंग्स. बिहेवियर क्या होता है? इन विच अ पर्सन एक्ट्स टूवर्ड्स अदर्स, लाइक हाउ अ टीचर इज acting towards the students or her colleagues. It is what? Behavior. So it should be well accepted by others that communicating teacher enthusiasm and positive behavior of teacher to become an effective teacher. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. From the following list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered. Okay. Project work, chalk and talk, lecturing with audio visual, computer aided instruction, simulation and role playing. So सबसे पहले chalk and talk is the part of teacher. Okay, very basic. Lecturing with audio visuals, it is also a part of teacher. Then comes computer aided instructions. 1 minute. Yes. And then simulation and role playing. Yes. So our correct answer is option B, D and E. P and D, computer aided instructions, simulation and role playing comes under student method. So basically 3 types are there: the teacher centered, student centered and the mixed method. So teacher centered, where teacher gives the instructions or anything. Then the student centered is inquiry based, and mixed वाला जो होता है वो cooperative होता है. So teacher centered, chalk and talk, lecturing with audio visual, team teaching, video और TV presentation. Then comes learner center, उसमें assignments आते हैं, interactive sessions, case study, open learning, personalized system of instruction, heuristic methods. और ये 2 computer aided instruction and simulation role playing. But in cooperative project work आता है, group discussion, seminars, brainstorming, पैनल डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस. ये सारे किस में आते हैं? मिक्स्ड में आते हैं. लर्नर सेंटर में प्रोजेक्टिव वर्क नहीं आएगा. ये क्वेश्चन में डाउट हो सकता है किसी स्टूडेंट को कि प्रोजेक्ट वर्क भी तो स्टूडेंट्स करते, लर्नर्स करते. नो, इट इज़ मिक्स्ड. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द लर्नर एंड टीचर. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? इन्हें मैच करना है. हम पहले मैच कर लेंगे एंड फिर आंसर बताएंगे. ऑप्शन ए, पहले आंसर देख लेते एंड देन मैच करते. ऑप्शन ए क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. इट इज 3. द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूवमेंट. फॉर्मेटिव कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. Then summative evaluation, it is option 4. Intention is to judge learning standards. Comes at the end. जो हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, that is what summative evaluation. Okay, it involves formal testing of a pupil's achievement. Then comes criterion reference test. It is option 2. Indicating some standards indicative of mastery. So criterion reference also termed as minimal competency test. Assessment is based only on a set of criteria and not on competency. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ने वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया देन द स्टूडेंट इज मास्टर. नॉर्म रेफरेंस्ड, इट इज ऑप्शन 1. परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग. नॉर्म रेफरेंस्ड, डन टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एस्टिमेट हीज और हर पोजीशन अमंग द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. हमारा जो ये नेट का एग्जाम है, इट इज़ ऑल्सो नॉर्म रेफरेंस्ड. परसेंटाइल बेसिस पर भी होता है, CSR नेट, एंड देन स्टैंडर्ड स्कोर्स, दे मैटर अ लॉट. दैट इज द कट ऑफ. ओके, to discriminate or rank the achievement level of students is the main objective of norm reference testing. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. in using hypothetical deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate? Hypothesis making, hypothesis testing, arriving at a generalization. We will directly go on the answer. Establishing a research problem, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion. क्या पूछा यहाँ पर? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिग्म. इसमें से कौन सी सीक्वेंस होगी उसकी? सबसे पहले तो ये क्या होता है? इट इज़ मेथड डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ह्यूगेंस. स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस वे टू फाइंड द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. 2 parts hypothetico, that is the hypothesis part, and then the deductive, the test consequences drawn from the hypothesis. 2 पार्ट में डिवाइड होता है, hypothesis and the test consequences from the hypothesis. So basically 7 steps में डिवाइडेड है. सबसे पहले आता है identify a problem, then define the problem statement, develop hypothesis, determine measures, data collection, data analysis and interpretation of data. Okay,
उसी में एस्टैब्लिशिंग हमने जो देखा रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ऐसे वर्ड्स रिपीट नहीं होते हैं बट बेसिक जो आइडिया है उनके पीछे की ये हमें पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ये कौन सी है? इथनोग्राफिक स्टडी। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिविज्म क्या होता है? ओनली फैक्चुअल नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही हमें फैक्चुअल नॉलेज आती है, थ्रू सेंसेस जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च एक्सेप्ट्स कंसेप्ट्स टू बी रिलेवेंट ओनली इफ दे सपोर्ट एक्शन। ठीक है, इथनोग्राफी में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ कल्चर, एंड ये ऑब्जर्वेशन बेस पर ही आएगा ना। अगर हम किसी कल्चर को देख रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट प्रोवाइड्स एन इनसाइडर पिक्चर ऑफ कम्युनिटी अंडर स्टडी। ठीक है, researcher can go and live in a specific community and observe the people around. That is what ethnography. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, a college teacher plans a research program in which he or she intends to improve the socio-emotional aspect of his or her classroom climate during teaching. Which one of the following research methods will be considered appropriate in his context? Okay, so what the teacher has to do? Has to improve the socio-emotional aspect of the classroom climate. So यहाँ पर पूछा है कौन सा रहेगा रिसर्च जो सही रहेगा। Action research method will be the most appropriate in this context. What is action research? Basically primary aim क्या होता है? To solve an immediate problem. और यहाँ पर immediate problem क्या है? Socio-emotional aspect. It is the immediate problem and the teacher has to solve it. So it is applied research which is focused on immediate application and not to develop any theory for general application. It refers to the application of research to educational problems in a particular classroom setting. ठीक है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके एसोसिएशन में है एक्शन रिसर्च मेथड। ओके, चलिए। एंड व्हाट इज द साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। हमने ये देखा हुआ है एक्शन रिसर्च का PAOR एक्रोनिम हमने देखा था, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जो तुमने प्लान किया फिर उसके ऊपर एक्ट किया, उसे ऑब्जर्व करो एंड देन रिफ्लेक्ट करके फिर से उस प्लान को चेंज करना है तो चेंज करो। गलतियों से सीखना इज नॉट रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following steps in research are least vulnerable to research ethics? Which are the steps which are least vulnerable to research ethics? Identifying the research variables, defining the research variables, data collection procedure, data analysis procedure, reporting research outcomes. Correct answer is option A and B. ठीक है, A and B only. Ethics क्या होता है? Principles या guidelines to uphold the things we value. So there are many ethical issues while coming in the research field. जैसे कि plagiarism होता है, thief, चोरी करना किसी का रिसर्च डेटा अपने नाम पर बताना, ये सब चीज़ें होती है। Highest level of ethical standards is maintained at the stage of data collection, data analysis and reporting research outcomes. तो लीस्ट कब आएगा? Identifying the research variable and defining the research variable. तब सबसे लीस्ट रहेगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में, डेटा कलेक्शन के टाइम पर you have to be free from the bias and prejudices and entire result of the research depends on a lot on the authenticity of the data. अगर डेटा ऑथेंटिक है तो ही रिसर्च सही रहेगी and you can prove your words right, your research right. Only if the data collection procedure and analysis are proper and then the outcome which you have drawn from the data collected. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, the personalistic styles of writing a research report are permissible in which of the following research? Grounded theory research, experimental research, participant observation based research, historical research, case study research. Correct answer is A, C, E. So personalistic style grounded theory में आता है, participant observation based and case study वाले में। पर्सनलिस्टिक स्टाइल क्या होता है? रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय प्योरली पर्सनल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन और बिहेवियर बाय वाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। मतलब कि खुद के पर्सनल एस्पेक्ट्स डालना उसमें, अपने वे में लिखना बेसिकली। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? दिस मेथड हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट थ्योरी फ्रॉम सिस्टमैटिकली ऑब्टेन्ड डेटा एंड एनालिसिस. इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडक्टिव इन नेचर. ओके, डेटा कलेक्शन मेथड फॉर फोकस ग्रुप जब होता है तब आता है ग्राउंडेड थ्योरी. देन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस टू लर्न अबाउट द एक्टिविटी ऑफ पीपल, द डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, लोगों की एक्टिविटीज देखकर. केस स्टडी बेस्ड क्या होता है? नो सैम्पल इज देयर. डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट
इट हेल्प्स टू गेन कॉन्क्रीट इन डेप्थ एंड कंटेक्चुअल नॉलेज अबाउट द कंसर्न सब्जेक्ट. ठीक है, इशू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है केस स्टडी वाला प्रॉब्लम, केस स्टडी वाला रिसर्च. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर, ओके, नाउ देयर इज अ पैसेज. I will provide the PDF on my Telegram channel. You can go through the passage there, and questions are passage based. Okay. The very first is, what is the current strategy of business to business managers? What is the current strategy? The correct answer is option D. More and more use of digital businesses. यहाँ पर ही दिया हुआ है ओपनिंग सेंटेंस में ही. See, digital and social marketing approaches from websites, blogs, and smartphone apps to mainstream social networks such as Facebook, LinkedIn, YouTube and Twitter. ठीक है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है. देन कम्स द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट आर. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट? कॉस्ट रिडक्शन, क्विक डिलीवरी, लॉन्गर टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट, एम्पैथेटिक परचेज. ऑप्शन ए एंड बी, कॉस्ट रिडक्शन एंड क्विक डिलीवरी आर द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट. इट इज ऑल्सो गिवन इन द पैसेज. क्वेश्चन नंबर 13, what can be strategic issue as a result of less paperwork? What can be the strategic issue? Development of new products. It can be the strategic issue. Then comes 14. What can be the main issue with e-procurement? Vice versa, power of internet. What can be the main issue? It is sharing business data with customers. Question number 15. The focus of the passage is on. What is the focus? ये खुद से पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में ध्यान में आता है the critical features of e-procurement. बेसिकली ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस है उसके बारे में है ये वाला. ओके, सो लास्ट में आपको आइडिया आ जाती है कि किसके रिलेटेड बात चल रही है, एंड यू कैन गिव द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. हियर द आंसर इज ऑप्शन डी. विजिबल. क्वेश्चन नंबर 16, communication based questions. In communication process, when the sender and the receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called transactional model. Okay, transactional model. It is basically most dynamic of the communication models. और इसका notable feature क्या है? This model is the move from referring to people as sender and receiver to referring to the people as communicators. रिसीवर और सेंडर बोलने से अच्छा है आप सिर्फ कम्युनिकेटर्स बोलो, क्योंकि इसमें रोल चेंज हो रहा है सेंडर एंड रिसीवर का. समटाइम्स द रिसीवर इज सेंडर एंड समटाइम्स सेंडर इज रिसीवर. ठीक है, दैट कम्युनिकेशन इज अचीव्ड एज बोथ पीपल सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. ओके, कोऑपरेटिव एक्टिविटी होता है हियर कम्युनिकेशन यहाँ पर. चलिए, बाय द वे व्हाट इज सिंगुलर फ्लो? लीनियर ट्रांसमिशन, और लीनियर जो होता है और ट्रांसमिशन मॉडल, इट इज सिंगुलर, एक ही डायरेक्शन में होने वाला, वन वे. देन कम्स यूनिवर्सल, कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक. ओके, प्लूरलिस्टिक का हम बाद में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल ensure opposite views, self-esteem, class performance, professional development, binary distractions. Correct answer is option C, B, C, D. That is self-esteem, class performance and professional development. If she is encouraging students to participate in communication, then she will ensure that there is self-esteem in the student, confident enough to speak. Then the class performance, how the student is performing, and professional development of student while speaking. क्योंकि जब आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो कम्युनिकेट करने में, यू स्पीक फॉर्मल इन अ फॉर्मल वे, एंड दैट हेल्प्स इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ओके, most important quality of a good teacher is to motivate the student, to encourage. Then if she encourages, then the students can take actively part in the process of teaching and learning, and the students can get hands-on experience and develop collaborative skills. ठीक है, and this might lead to the effective communication of student also, increasing their self-esteem. What are binary distractions? Not desirable and it is not the motive of teacher. And what are the opposite views? Not necessary communication, not necessary in communication. Ensure sharing ideas and views. अगर आप टीचर्स को बार बार क्रॉस करेंगे, then how come you will develop your communication skills strong, and there will be a positive environment in the class if you are going cross with your teacher on every topics. Yes, sometimes you can go, but not every time. Okay, so having opposite views can sometimes harm the classroom environment. Question number 18, assertion and reasoning. In group discussion, some participants enter the fray with big chips on their shoulders. Reason: they are antagonistic people who are calm and listed. Correct answer is option C. A is correct but R is not correct. Okay, यहाँ पर क्या पूछा गया है?
ग्रुप डिस्कशन के बारे में. व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन? अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स बिहेवियर इन अ ग्रुप. ओके, कंपेयर द नॉलेज, डिलीवरी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ये सब कुछ उसमें डेवलप हेल्प होती है डेवलप करने में. सो बेसिकली देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ये तो आप मानते हो कि हर अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन अ ग्रुप डिस्कशन. सो द पार्टिसिपेंट हु इनिशिएटेड द डिस्कशन, कंट्रोलर, प्रोवोकेशन और कंसिडर हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, फॉल्ट फाइंडर, फॉलोवर एंड एग्रेसिव. मतलब कि जो अलग अलग लोग कौन कौन होते हैं, जैसे कि जो स्टार्ट कर रहा है डिस्कशन, जो कंट्रोल कर रहा है पूरा इन्वायरमेंट, देन द प्रोवोकेशन, समवन हु इज प्रोवोकेटिंग वन और टू पीपल अगेंस्ट समवन हु इज स्पीकिंग, देन फॉल्ट फाइंडर जो गलती फाइंड करते हैं, एंड द फॉलोअर हु इज फॉलोइंग द पार्टी कम्युनिकेटर, गिस्ट मेकर, ब्लॉक हेड एंड जो मैंने एग्रेसिव बोला था वो भी. ओके, जो जल्दी से अनॉय हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं किसी चीज़ से. सो टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है, विथ बिग चिप्स ऑन देयर शोल्डर्स, होल्डिंग ग्रजेस और ग्रीवेंसेस. मतलब कि जो हमारे कम्युनिकेशन में डिसरप्शंस ला सकते हैं, दैट इज व्हाट इफ यू होल्ड एनी ग्रंचेस और ग्रीवेंसेस इन योर हार्ट. एंड व्हाट आर एंटागोनिस्टिक व्यूज और एंटागोनिस्टिक पीपल, शोइंग और फीलिंग एक्टिव अपोजिशन और हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिकेटर, एंड दे आर नॉट काम एंड लिस्टेड. वो काम नहीं होते क्योंकि वो उन्हें जो फॉल्ट फाइंडर्स मैंने बोला है ना, दे आर एंटागोनिस्टिक पीपल बेसिकली. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सबसे पहले फिजिकल बैरियर क्या है? इट इज इनऑडिबल वॉइस. साइकोलॉजिकल बैरियर, इट इज प्रीडिस्पोज्ड नोशंस. Then comes language barrier, different understanding and cultural stereotypes. Okay, communication barrier and their description. Now question number 20. When communication for educational purpose take place, the sequence of element is option A is the correct answer. जो sequence दिए यही, source आता है, फिर encoder, decoder and then feedback. Last में feedback, sender. Okay, जो कि sender means the person who conveys the idea. He is referred as source. Then the message, जो कंटेंट है वो मैसेज होता है. इनकोडिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन, इट इज़ व्हाट इनकोडिंग. देन कम्स मीडिया विच इज द पाथ टू ट्रांसमिट द मैसेज टू कम्युनिकेट. डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिम्बल्स इनटू वर्ड्स. जो सेंडर ने बोला है वो रिसीवर को समझ में आना, डिकोडिंग. एंड देन फीडबैक, इट इज़ गिवन बाय सेंडर, इट इज़ गिवन बाय रिसीवर टू द सेंडर. और इन सब में ऑब्स्ट्रक्शन क्या लाता है? नॉइज. क्वेश्चन नंबर 21. नाउ क्वेश्चन इज ऑफ मैथ्स. चलिए, अ मैन वॉक्स a speed of 3 km/h from location A towards east for 1 hour and then turning left walks at a speed of 1.5 km/h for 6 hours towards north to location B. Shortest distance between location A and B. तो सबसे पहले मूविंग टूवर्ड्स 3 किलोमीटर जाते हैं. द पर्सन इज गोइंग 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. 3 किलोमीटर्स, 1 minute, we will make a proper diagram. 3 kilometers and then the person is moving, okay, 1 minute, east जा रहे हैं ना, इस साइड, ठीक. okay, it is moving 3 kilometers from the source point and then for 1 hour and then turning left walks at a speed of 1.5 kilometers for 6 hours. 1.5 kilometers for 6 hours. okay, 1 घंटे में 3 किलोमीटर्स चल रहे हैं. देन 1.5 इंटू 6, 1 इंटू 3 आता है 3, 1.5 इंटू 6, टोटल 9. ठीक है, 9 किलोमीटर्स इन्होंने वॉकिंग कर लिए. ये स्पीड है, ये जो है ये स्पीड है, और ये वाला है जो उन्होंने वॉकिंग किया है, किलोमीटर्स उन्होंने अचीव किए. यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी, 1 इंटू 3, 3. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आगे जा रहे हैं. देन टर्निंग लेफ्ट, ये लेफ्ट में चले गए. यहाँ पर इन्होंने टोटल 9 किलोमीटर्स चले हैं. 9 किलोमीटर्स ही हैड वॉक्ड. ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी. अब यहाँ पर हमारा पॉइंट ये है ए, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने बोला है कि बी तक वो पहुँचे, तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, हाइपोटेनियस. और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हमने ये जो निकाला है ये उस बेसिस पर निकाला है. दिस हमारे पास स्पीड था और टाइम था, उस बेसिस पर हमने डिस्टेंस निकाला है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, a² + b² इज इक्वल टू
x, ये आती है हाइपोटेनियस, और हमें यहाँ का जो है ये वाला डिस्टेंस निकालना है x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x. ओके, सो बेसिकली 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना किलोमीटर आता है? 3 स्क्वायर 9 प्लस 81. एंड यस वन मोर थिंग, अंडर रूट, मैंने अंडर रूट यहाँ पर लिखना भूल गई थी. 81 सो 90 अंडर रूट 90, और इसका क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 9.4 अंडर रूट. एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 9.48. हमने कैसा निकाला था ये वाला? ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये कैसा निकाला हमने? स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पर हमारे पास में ये है हमारा 1 पॉइंट, ये स्पीड था और ये हमारा टाइम था, एंड हमने इससे निकाल दिया था डिस्टेंस. ओके, चलिए काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज चेंज बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड बाय 1%. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? ओके, क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर चेंज बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड बाय 1%. 1% का इंक्रीज हो रहा है साइड में. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड बाय 3. ये तो बेसिक फॉर्मूला है. वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड रेज टू 3. ठीक है, पहले क्या था? 10 सेंटीमीटर, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ 1%. सो चेंज इन परसेंटेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल बाय इनिशियल अपॉन इंटू 100. ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट. हमने वॉल्यूम, वी आर टेकिंग द वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब. ओके, सो देर इज ना चेंज इन परसेंटेज, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर वी आर टेकिंग चेंज इन परसेंटेज. सो व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये आता है चेंज इन परसेंटेज. ओके, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? इट इज 10 क्यूब, बिकॉज साइड क्यूब है ना. इनिशियल वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? हम यहीं पर लिख देंगे 10 क्यूब, दैट इज 1000. ये आ गई हमारी इनिशियल. हमें अभी क्या पता करना है? फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम में उन्होंने हमें क्या बोला है? 1% का इंक्रीज हो रहा है, तो 10.1 ये है फाइनल. सो 10.1, देन फाइनल वॉल्यूम 10.1 इनका क्यूब, दैट इज 1030.3. ये है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वैल्यू. ये इनिशियल वैल्यू है. अभी हम वो वैल्यूज पुट ऑन करेंगे किस में? हमारे इक्वेशन में. फाइनल वैल्यू 1030.3 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100. ओके, सो इट इज, यहाँ पर कितने बचते हैं? 30. 1 मिनट. यहाँ 30 बचते हैं, 30.3. ये दो कैंसिल हो जाएंगे. 1000 30.3 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा. ओके, देन परसेंटेज इंक्रीज करना है. अभी इसको 1000 से डिवाइड करो, फिर उसको 100, तो बेसिकली 10 ही आएगा नीचे. ओके, देन द करेक्ट आंसर विल बी 3.03%. 10 ऊपर आ जाएगा ना. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बेसिक मैथ्स से ये बहुत ईजी क्वेश्चंस थे एज कम्पेयर टू नेक्स्ट अदर एग्जाम्स. बहुत ही बेसिक मैथ्स है. ओके, वॉल्यूम क्या है? साइड क्यूब होता है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, साइड का क्यूब निकालना. देन हमने चेंज इन परसेंटेज देखा. क्यों? तो इंक्रीज इन परसेंटेज बाय 1% हो रहा था. तो जो न्यू इनिशियल वैल्यू है उसमें हमने 1% का जो चेंज आ रहा है 10.1 होता है. ओके, देन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100. हमने वो वैल्यूज पुट ऑन किए एंड वी गॉट द आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2, 10, 30, 68x. द व्हाट इज द टर्म x? इट इज बेसिकली a different question.
यहाँ पर इंक्रीज कितने से हो रहा है 2, देन +8 +20 +30 38 +x, ठीक है। सो क्या बोला है उन्होंने, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। 1 क्यूब +1 = 2, देन 2 क्यूब +2 2 क्यूब +2 क्या आता है 8 + 2 = 10 10 क्यूब, सॉरी 10 क्यूब, 10 नहीं लेना है, 3 ही लेना है, 3 क्यूब +3 3 क्यूब 27 +3 it is 30, then 4 cube +4 64 +4 68 5 cube +5 125 +5 130. Our correct answer is option A 130. Okay, hope it helped you. चलिए, एंड ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं. आई विल रेफर यू टू गो थ्रू द अदर पीडीएफ्स ऑल्सो. जो क्वेश्चन पेपर्स है दूसरे भी, उनको भी एक बार देख लो ताकि आपको अवेयर हो जाओ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, बेसिकली जो मैथ्स पार्ट आता है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24. अ हाउस होल्ड इंकर्स अ सर्टन एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन मंथ. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द नेट % इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड. ठीक है, प्राइस कमोडिटी का कितना हो रहा है 20% से डिक्रीज हो रहा है, एंड जो कंजम्पशन है 20% से ही इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर भी हम वही करेंगे, परसेंटेज चेंज. ठीक है, परसेंटेज चेंज, क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द नेट % इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर. हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है. वी विल गो थ्रू द परसेंटेज चेंज वाला भी. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू divided by initial value into 100. It is the percentage change. So we will take the initial value as 100x. IV को क्या लेंगे हम 100x. और यूजुअली ना 100 या 10 ऐसे वाले टर्म्स ही यूज़ करना, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ये वाले जो टर्म्स है इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करने में बहुत ईजी जाता है. प्राइस ऑफ कमोडिटी आफ्टर डिक्रीज, अगर 100x में से 20% डिक्रीज कर रहे हैं तो कितना होगा 80x. 100 में से 20 डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा 80. सो ये आएगी फाइनल वैल्यू ऑफ कमोडिटी. ठीक है, 100x माइनस 20 = 80x. ये है हमारी वैल्यू, प्राइस ऑफ द कमोडिटी आफ्टर डिक्रीज. सो ये हमने इनिशियल एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया था 100x एक्सपेंडिचर है, ये भी ध्यान में रखो, ये एक्सपेंडिचर है. देन यहाँ पे उन्होंने बोला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, 100x में से हमारा 20 गया, 20%. फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा फिर 20% इंक्रीज. क्यों, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. तो क्या करना है 80x लेना है प्लस 20% इंक्रीज ऑफ 80x. तो क्या आएगा हमारा आंसर = 96x. अभी हमने क्या किया, ये परसेंटेज निकाला और इसको ऐड किया. 20% ऑफ 80 क्या होता है 16. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी गॉट द आंसर 96. अंडरस्टैंडिंग? देन नाउ वी विल मूव फर्दर. हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर. कितना एक्सपेंडिचर में डिक्रीज आ रहा है हमें वो पता करना है, और फटाक से पता करेंगे वो कैसे, 100x माइनस 96x, क्योंकि 96 अभी कौन सी वैल्यू है जो लेटर आई है. ओके, क्या आंसर आएगा हमारा 4x. दैट विल बी द 4%. ओके, चलिए और एक ट्रिक है, जैसे +20 -20 वाली ट्रिक है, जिसमें यू कैन टेक +20 -20 -20 × 20 by 100. ये दूसरी ट्रिक भी देख लो. सी +20 -20, क्योंकि +20 कंजम्पशन इंक्रीज का, -20 कमोडिटी डिक्रीज का. फिर यहाँ पर
20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो +20 -20 कैंसिल कैंसिल, 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाय 100, ओके। और यही आता है हमारा, जो मैंने ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करने का बोला था, ये इसके लिए था फाइनल वैल्यू। मैंने अभी दूसरी मेथड बताई, 2 मेथड से, मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2, ओके। जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। यानी -4% आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं है बट स्टिल इट इज़ 4%, इसीलिए मैंने ये मेथड भी बता दी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग लेटर्स सीरीज, व्हाट इज नेक्स्ट ऑफ ACF EG JIKN MOR, इसका नेक्स्ट क्या आएगा? इट इज ऑप्शन A QSV। हाउ? सी। सो बेसिकली A plus E 4, C plus A, let me write here at different place. Basically A plus 4 E plus 4 I plus 4 M plus 4 Q. Similarly C plus 4 G plus 4 K plus 4 O plus 4 S, and then F plus 4 J plus 4 N plus 4 R plus 4 V। ये है हमने निकाला आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, given below are 2 propositions, all philosophers are fallible, Socrates is not a fallible. In the classical square of opposition, which of the following is the correct answer? It is contradictory statements. All philosophers are fallible, Socrates is not fallible. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव स्टेटमेंट है, ओके। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी का हमने और एक देखा था, दैट इज ऑल एस इज नॉट बी वाला जो स्टेटमेंट्स आता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है, ठीक है। Standard form of categorical proposition that has the same subject and predicate term but differs from each other in both quantity and quality. दोनों propositions एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव रहेगा, एक अगर निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा। वन विल बी ट्रू, अदर विल बी फॉल्स, ओके। दैट इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। Question number 27. Mahatma Gandhi is called father of nation. What kind of classical categorical proposition it is? It is universal. Universal affirmative. Okay. Father of nation. It is a preposition क्योंकि all S is P. They begin with all every. जो होता है यूनिवर्सल में all every, जो वाले everyone इंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सल आते हैं। एंड अफर्मेटिव बिकॉज इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, ओके। Universal implies a proposition that remains constant and universal and is true in all circumstances, and there is absence of negative words such as no, not indicates it is affirmative. जो मैंने हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में भी बोला, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, which of the following प्रमाणास are accepted by वैशेषिका philosophy? कौन से प्रमाणास है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थ, अरपति, अनुपलब्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A and B, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि हमने देखा था परसेप्शन, अनुमान यानी कि इन्फरेंस। प्रत्यक्ष थ्रू द सेंसेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्वायर्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स। एंड व्हाट इज अनुमान? इट इज इन्फरेंस विच वी एक्सेप्ट द ट्रूथ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ट्रूथ बेस्ड ऑन द परसेप्शन। अगर परसेप्शन से समझ में आता है कि ये सच में है, सच है, तो हम उसे इन्फरेंस करते हैं। प्रमाण क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज, ओके।
और अलग अलग टाइप के प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अरपति, अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाण के टाइप है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक फिलोसॉफी बोली है वैशेषिका फिलोसॉफी। 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, तो उसमें आती है वैशेषिका, और वो उसके फाउंडर कौन है? कन्नड़ा कश्यप। ओके। डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, ये आता है वैशेषिका में। प्लूरलिस्टिक रियलिज्म, it is a system of physics and metaphysics and classifies all objects and experiences into 6 categories। कौन से 6 categories होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सम्य, विशेष, समवाय। ओके। Reality of spiritual substances, the soul and God and the laws of karma are accepted in the वैशेषिका school। ठीक है। It is not materialism but atomism। द्रव्य जो आता है एटम, इंडिपेंडेंट हैज इट्स ओन लॉजिक, और जो 6 प्रमाणास है हिंदुइज्म में उसमें से 2 आते हैं, प्रत्यक्ष एंड अनुमान, जो वैशेषिका ने एक्सेप्ट किया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म? अध्यास, अपभावा, अर्थपति, प्रत्यक्ष एंड शब्द। ओके, ये भी प्रमाणासी है। तो इसमें से पूछा है कि बुद्धिज्म में कौन से एक्सेप्टेड है। पहले हिंदुइज्म आया, अब बुद्धिज्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ई, दैट इज अपभा एंड प्रत्यक्षा। ठीक है। अपभा क्या होता है? रिफर्स टू द बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी, निगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि कैन बी यूज टू एक्सप्लेन अवे यूनिवर्सल्स एज द रेफरेंस ऑफ वर्ड्स। थोड़ा डिफिकल्ट है। और प्रत्यक्ष परसेप्शन हमने अभी देखा था, जो सेंसरी ऑर्गन से आता है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी क्या है? डेवलप्ड बाय वेरियस बुद्धिस्ट स्कूल्स and that are the system of inquiry and philosophical investigation। अपोभा इज द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। और भी अनुमाना भी एक्सेप्टेड है बुद्धिज्म में, ये बात भी ध्यान में रखो। प्रत्यक्ष और अनुमाना बुद्धिज्म में भी आता है एंड हिंदुइज्म में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग: जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड, वेरीफिएबल और नॉन वेरीफिएबल। करेक्ट आंसर इज वैलिड और इनवैलिड। यहाँ पर क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट, comes to a conclusion from a set of premises by means of logical implications via logical inferences. The argument can be valid or invalid and can have more than one premises, but one conclusion, only one conclusion. Premises हो सकते हैं एक से ज़्यादा, but conclusion एक ही रहेगा. An argument helps to determine the degree of truth of the other statement. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब है डेटा इंटरप्रिटेशन. So here is the question on data interpretation. Year or vegetable: potato, tomato, onion, and then 2014, 15, 16, 17, 18, 19. तो उस टाइम का प्रोडक्शन बताना है. आंसर द क्वेश्चंस. डेटा ऑन वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड ईयर वाइज इन टन, ये टन्स में है. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. सो देन इन विच ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन दैट ऑफ एवरेज? 2016, 14, 15, 17. और इसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो वह करेक्ट आंसर इज ए बी डी. ऑप्शन ए बी डी. ओके. And how we have calculated it? We have to see the potatoes. So basically potatoes from 2016, then 14, 15 and 17. ये तीन साल 4 साल के देखना है. तो 16 में 300 था, 15 में 500 है, 14 में 200 है and 17 में 100 है in tons. Okay, so how we will calculate the average production? एवरेज कभी भी कितना निकलता है? टोटल नंबर का, टोटल नंबर को हाफ करते हैं टोटल. तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे. जो पूरा टोटल क्या है हमारा, ये पूरा 200 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 800, इट इज़ टोटल 2600. टोटल कितना है? 2600. इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे. क्यों हमने 6 से किया? बिकॉज ये टोटल 6 वैल्यूज है. 1 2 3 4 5 6. ओके, देन आवर करेक्ट आंसर इज 443.3. ऐसा वैल्यू आता है आफ्टर डिविजन. सो फॉर द ईयर्स जिसमें प्रोडक्शन 433 से कम है, तो ये कौन से है? ये है 200, 300 एंड 100, 17, 16 एंड 14. ओके, सो अब आंसर इज ऑप्शन ए बी डी. 2016, 2014 एंड 2017. समझा? होप यू अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बाद में फिर वो मैसअप हो जाता है, तो हमें सॉल्व करने में इशू नहीं आना चाहिए.
चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इज लीस्ट, कौन से साल में टोमेटो का प्रोडक्शन सबसे कम है? 50, 70, 40, 80, 70, 90। ये तो बाय ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ रहा है हमें कि कौन से साल में सबसे कम है। इट इज ऑप्शन डी 2016। 2016 में सिर्फ 40 टन्स ऑफ टोमेटोज आए थे। 33, व्हाट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018? नाउ देयर इज अ टर्म ग्रॉस प्रोडक्शन, and when there is cross production then we will consider all the three. So here all the three, 700 plus 70 plus 500 is equal to 1270 and that is what our answer is also 1270. Calculate, बहुत easy है data interpretation के question. What is increase in percentage of the total production of vegetables from year 2018 to 2019? 2018 से 2019 के इंक्रीज इन प्रोडक्शन पूछा है। अभी हमने 2018 का देख लिया था, टोटल कितना है 1270। ओके, अभी हम आगे जाकर ये देख लेते हैं 2019 का कितना आता है। 800 प्लस 90 प्लस 600 इज इक्वल टू 1490। ओके, चलिए हम अब यहाँ पर 1490 डाल देंगे, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं 1490। और यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज में पूछा है, ये पॉइंट को नोट करो। सो 1490 माइनस 1270 वैल्यू विल बी 220। ओके, दिस विल बी द बेसिक वैल्यू। देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? 220 डिवाइडेड बाय 1270 विच विल बी द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ 2018 इंटू 100। ओके, तो काटा करना पड़ेगा एंड देन द आंसर विल बी समथिंग रिलेटेड टू 17.32% एंड दैट विल बी द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम, कौन से साल में प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है ये पूछा है। ओके, अभी हमें सारे वेजिटेबल्स को सारे ईयर्स को कंपेयर करना है। हम ऊपर से भी देखकर पता कर सकते हैं। 200 प्लस 500 प्लस 300 यहाँ पर आता है 550। ओके, देन 500 प्लस 770 प्लस 200 इट विल बी 770। 300 प्लस 40 प्लस 100 440 एंड देन 100 प्लस 80 प्लस 400 580। तो सबसे ज़्यादा कब आ रहा है? 2019 में 1490। ओके, इट इज ऑप्शन सी 2019। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन CD रोम? CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फॉर्मूला रीड ओनली मेमोरी एंड कॉम्पैक्ट डिस्क CD। ओके, CD रोम क्या होता है? इज अ CD दैट कैन बी रेड बाय अ कंप्यूटर विद एन ऑप्टिकल ड्राइव। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। ऑप्शन डी, मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है? टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, फोटो एक्सेट्रा। इंटीग्रेशन ऑफ वन मोर टाइप्स ऑफ मीडिया, मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 38, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर क्या दिया है? C, D ओनली एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ओनली ऑनलाइन लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 39, assertion and reasoning. E-commerce companies require personal data to serve the stakeholders better. In this process, privacy may get compromised. So our correct answer is option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. E-commerce, the business model that facilitates selling or buying goods over the internet. And उसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ओके, सो इसके चक्कर में प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट यहाँ पर इन्होंने स्टेक होल्डर्स की बात की है एंड यहाँ पर इन्होंने कंज्यूमर, जो कस्टमर है, उसके एसोसिएशन में बात की है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के होते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो लोग, एंड प्राइवेसी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द कस्टमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, स्नेक। पाइथन क्या है? पाइथन स्नेक भी आता है, बट यहाँ पर हमने ICT बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
Option B, A only. Programming language. Python is a programming language, high level programming language. It is object oriented and combined with dynamic semantics. Okay, used as an interpreter to convert source code to object code. फ्री एंड ओपन सोर्स सिस्टम है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में वर्क करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एट प्रेजेंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, BDCA. सबसे पहले आता है एशिया, देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका. डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? एशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, एशिया हाईएस्ट. एंड एशिया में भी कब सबसे ज़्यादा आता है? चाइना, 28%. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisaged making available the benefits of new technology, especially which of the following? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करेंगे. ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सितंबर 2000 में डिक्लेयर किए थे. वर्ल्ड लीडर्स केम टुगेदर एट UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क टू अडॉप्ट UN मिलेनियम डिक्लेरेशन. ओके, what are the 8 goals? To eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, improve maternal health, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for the development. Harness new information and communication technology to help achieve EFA goals. EFA यानी कि education for all goals, जिससे हम प्राइमरी एजुकेशन को अवेलेबल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 43. द ग्लोबल इमिशन बाय वेट ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ग्लोबल इमिशन किसका सबसे ज़्यादा है? बाय वेट, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 फॉसिल फ्यूल, CO2 डिफॉरेस्टेशन से भी आता है, 2 वे से आता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल अबाउट 76% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कॉज्ड इमिशन. कार्बन डाइऑक्साइड स्टिक्स अराउंड फॉर अ क्वाइट वाइल. इमिटेड होता है जब एटमॉस्फेयर में. 40% रिमेन आफ्टर 100 years, 20% आफ्टर 10,000 एंड 10% आफ्टर 1,000 एंड 10% आफ्टर 10,000. ठीक है, सबसे ज़्यादा रहता भी है लाइफ साइकिल. और सबसे ज़्यादा इमिशन भी 76% होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 44. ये है वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स मैच. ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उनका सोर्स है. प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एसिड्स, माइन ड्रेनेज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनिल्स, PCBs. ये है वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डम्प्स, वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेस. ठीक है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट आता है पेपर मिल्स में से और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में से. देन प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाले आते हैं मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ से. यूट्रोफिकेशन होता है ना उससे. एसिड्स, माइन ड्रेनेज एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनिल्स फ्रॉम द वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डम्प्स. 45. Question number 45. Assertion and reasoning. Despite increasing vulnerability to natural disasters, many communities resist adopting mitigation programs and measures. Mitigation is often perceived by communities as being incompatible with their cultural practices. Correct answer क्या है इसमें? Our correct answer is option C. A is correct but R is not correct. Okay? Mitigation क्या है? Actions taken to prevent or reduce the risk. But ये जो उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट जो R दिया है, mitigation is often perceived as incompatible. Reason: what is the barriers towards mitigation are economic, social, political, and mitigation is often perceived as restrictive, costly and incompatible with the community's economic developmental goals. Okay? कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से नहीं, इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से वो इनकम्पैटिबल है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कॉस्टली. ओके, इट मे इन्वॉल्व द सोल्यूशंस दैट आर टेक्निकली साउंड बट पॉलिटिकली अनपॉपुलर. मतलब कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है वो भी रिलक्टेंट रहे उन्हें परस्यू करने के लिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 46. द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982. ऑप्शन बी 1982.
Open and distance learning system is system wherein teachers and learners need not necessarily be present either at the same place or at the same time. ODL consists of IGNOU, State Open Universities, institutions and universities offering education, correspondence course institutes. तो सबसे पहली वाली कौन सी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद. Let us write it. Dr. B.R. Ambedkar Open University Hyderabad. Okay. And then comes उसके बाद में भी आते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो राजस्थान के, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, फिर मध्य प्रदेश भोजो ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 47. असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो चैट, ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड्स, ब्लॉग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, D, E, F. असिंक्रोनाइज किसके थ्रू होता है? ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड्स एंड व्लॉग्स. ठीक है, बेसिकली डिस्कशन बोर्ड्स क्या होते हैं? इट इज़ बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर कोलैबोरेशन, डिबेट्स, डिस्कशन. देन ब्लॉग्स यूज बाय टीचर्स टू शेयर स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स विद द स्टूडेंट्स. व्लॉग्स अ वीडियो ब्लॉग और अ वीडियो लॉग जो व्लॉगिंग करते हैं, विच इज़ वेरी फेमस नाउ. ठीक है, एंड व्हाट इज असिंक्रोनाइज? Learners and teachers are not present at the same time. It is asynchronous. The teacher assigns a task or assignment to the student and allot a time frame to submit it. After submission, teachers go through the task and provide the feedback. Synchronizes उसका उल्टा. Interaction between teacher and student occur at the same time. That is teleconferencing, virtual classroom, video conferencing, instant messaging, वीडियो चैटिंग वगैरह से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. 48. The stages of value development and implications of value formation. करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन C is the correct answer. Stage 1 value collection, it is option 2. Observing and imitating the adult behaviors, particularly parents. Stage 1 में आता है पेरेंट्स को इमिटेट करना. Stage 2 में आता है choosing and imbibing value one cherishes, खुद के पसंद की वैल्यूज. Stage 3 finding out gaps in values preached and practiced, which the adulting is about. जो सिखाया है और जो प्रैक्टिकल है उनमें डिफरेंसेस. Stage 4 value consolidation, predictability of human behavior is assured. Option 3. ओके, स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट है. पहला वैल्यू कलेक्शन जो हम पेरेंट्स को इमिटेट कर या दूसरों से सीख कर ऑब्जर्व कर सीख लेते हैं. देन वैल्यूइंग इज द देयरफॉर कंसिडर्ड अ प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग विद एंड एक्सेप्टिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस. स्टेज 2 वैल्यू असेसमेंट जो कि है जो वैल्यूज पसंद है, चूजिंग एंड इम्बाइबिंग द वैल्यूज विच वन चेरिशेस विच आर लाइकड. वेरी पर्पस एंड मेन फंक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड एंड वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. देन कम्स वैल्यू क्लैरिफिकेशन, process of defining one's value by finding out the gaps in values preached and practiced. And then comes consolidation. In the literal sense, it is the action or process of combining a number of things into a single more effective or coherent whole. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. लास्ट नहीं 49th question. Statement 1 and Statement 2. Given below are two statements related to Upanishadic tradition. Paravidya means knowledge that transcends human experience. Aparvidya means knowledge based on human experiences. Both the statements are true. ठीक है. Paravidya is a combination of two words. Para यानी कि philosophy means existence paramount. Hindu philosophy sorry. Para is existence, the highest point or degree. And vidya यानी कि knowledge. Paravidya higher learning or learning related to the self or ultimate truth. Translational knowledge. Vedanta affirms that those who gain the knowledge of self attain kevalya, they become liberated and become brahman. ठीक है, ये आता है पर विद्या में. Then comes अपर means knowledge based on human experiences. Easy way में, सोपा जो हमें डेफिनेशन में भी दिया है कि जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके थ्रू हम नॉलेज लेते जाए. Considering everything as a classroom. Question number 50. Which of the following entries of the Indian Constitution deals with coordination and determination of standards in the institutions for higher education or research or scientific and technical institutions? Entry 66 in the Indian Constitution. It is in Union List or List 1. उसमें total 98 है.
ठीक है। तो उसमें जो 66 नंबर की एंट्री है वो किससे एसोसिएटेड है? कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च और साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। 63 किसके एसोसिएशन में? इंस्टीट्यूशन नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये वाले, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन 64 इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोनली और इन पार्ट। 65 यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोफेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये 65 में आते हैं। प्रमोशन ऑफ स्पेशल स्टडीज और रिसर्च, साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमारा यहीं पर ख़त्म होता है आज का वीडियो। होप यू पीपल लाइक इट। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़ बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अगर वीडियो आते रहना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट्स में बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है तो बताओ वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।